آپ نے سلجوق سلطان ملک شاہ کا نام سنا ہوگا۔ بڑے زبردست حکمران تھے اپنے دور کے۔ ایک دفعہ ان کے پاؤں میں موچ آ گئی تو ملک شاہ نے اپنے دوست اور بہت سیانے عمر خیام کو پیغام بھیجا کہ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، کوئی اچھا سا طبیب بھیجو، کیونکہ سلطنت کے تمام امور روکے ہوئے ہیں۔ عمر خیام شاعر تھے، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ملک شاہ کو، اور آپس میں دوست بھی تھے، کہ ذل الہی کچھ عرصہ سلطنت کے امور سر سے چلا کر دیکھیں پیر کے بجائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کی محبتوں کا مکروز محمود نادی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 19 مئی 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے منگل کا۔ یہ آپ سے دوسرا انٹریکشن، دوسرا آمنا سامنا۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کو ابتدا میں بتائی کہ بدقسمتی سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ سر کی بجائے وہ پیر استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو ہے وہ خبریں رکھنی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج منگل کا دن ہے اور بالآخر اپوزیشن آج تھوڑی سی متحرک نظر آئی، سڑکوں پہ نظر آئی۔ سب سے بڑا قافلہ جو تھا وہ سہیل آفریدی کا تھا جو پشاور سے آئے، لیکن ان کو 26 نمبر جو چنگی ہے، جہاں سے موٹر وے سے آپ اسلام آباد یا راول پنڈی میں داخل ہوتے ہیں، جب میں یہ ویڈیو کرنے کے لیے بیٹھا تو اس وقت سہیل آفریدی کو وہاں پہ روکا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کارکنوں کی کافی بڑی تعداد تھی ان کے ساتھ، اور محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے بھی اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد تھوڑا سا حرکت کی ہے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آج اڈیالہ جیل جائیں گے اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اپوزیشن اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ دھرنا دیا جائے اور وہاں پہ بیٹھا جائے، سسٹم پہ دباؤ ڈالا جائے، تو کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان بری ہو جائیں گے یا عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو صبح والے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جب تک میرے جسم پر یونیفارم ہے تو عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ عمران خان بری ہو جائے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے، لیکن اس سے پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے اور تھوڑا جو پارٹی کا موریل ہے وہ بڑھتا ہے، اور خاص کر جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، تو ان کا بھی جو اپنی قیادت ہے، ظاہر ہے جو دستیاب قیادت ہے، سیدھی بات ہے، جو دستیاب ہیں لوگ، اب چین سے تو لوگ لائے نہیں جا سکتے یا امریکہ سے تو لائے نہیں جا سکتے، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ٹکٹوں میں جیتے ہیں، یہی وزیر اعلیٰ ہیں، یہی وزیر ہیں، یہی ایم این ایز ہیں، یہی ایم پی ایز ہیں، انہی پہ جو ہے نا وہ انحصار کرنا ہے۔ تو بہرحال کارکنوں کا تھوڑا سا حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ بہرحال آج راول پنڈی میں بہت زیادہ گہما گہمی ہے، راستے بند ہیں، کنٹینر جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ یہ ملک اب آپ اس طرح کہیں کہ یہ جو ہے نا ذاتی جاگیر بن گیا ہے، یعنی یہ یہاں پہ ایک ناپاک گٹھ جوڑ ہے، یعنی جرنیلوں کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، یعنی ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن ہوئے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ لیک ہو گیا، ڈراپ سائٹ نے جو ہے وہ شائع کر دیا، اور میں نے تو ان کو دعوت دی تھی کہ اب ڈراپ سائٹ پہ یہ مقدمہ کر دیں، رائن گرم پہ یہ مقدمہ کر دیں اور مقدمہ جیت لیں، اگر، کیونکہ امریکہ میں بڑے سخت قوانین ہیں، وہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ہے جس کو کہہ دیں اور پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں سعد رفیق نے کہا، وہ جو کانسٹیٹیوشن 1 میں اس کے 8 جو ہے نا وہ فلیٹس نکلے، تو اس نے کہا جی کہ میرے
मीडिया मैनेजर ने मेरा अकाउंट इस्तेमाल किया, मेरा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया और 8 अरब के 8 जो है ना वो उसने अपार्टमेंट ले लिए। मैं तो घर में सोया हुआ था, मुझे तो कोई पता नहीं। तो वो पाकिस्तान नहीं है। वहां पे अगर ये मुकदमा कर दे तो ये मुकदमा जीत सकते हैं। आजकल नई हिजरत हो रही है इसकी जो है ना वो सरमाए की, कारोबार की हिजरत हो रही है। मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि अब ये नई पार्किंग ढूंढ रहे हैं जो है वो सरमाए के लिए। किस तरह? दुबई के अयाश खाने से बाकू के महल्लात तक लूट मार की नई हिजरत। ये जो आपको शरीफ खानदान भागा भागा नजर आता है ना, और खासकर आजकल इनका टारगेट है ये जो हमारी ये जो हैं रियासतें हैं जो रूस से अलहदा हुई, ये रियासतें हैं जहाँ खुद भी रस्सागिरी का निज़ाम है। वो बड़े खुश होते हैं कि अगर आप लूट मार करके लाएं, अगर आप पैसे लूट कर लाएं तो वो बड़े खुश होते हैं। तो ये नई हिजरत है जी। आप जानते ही हैं ये पूरा गंदा खेल हमेशा चलता रहता है और पाकिस्तान की ये बदनुमान और करप्ट इशराफिया कभी मौका हाथ से नहीं जाने देती। आजकल नवाज शरीफ की कुड़ी बाकू में आपको तंदूर पर खड़ी नजर आएगी और वहां पे वो रोटियां लगा रही थी। पाकिस्तान में रोटी छीनकर बाकू में रोटियां लगाई जा रही हैं। बहरहाल ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। बरसों तक दुबई इनका महफूज अड्डा था, एक ऐसा पावरफुल ब्रोथल का मतलब आपने देख लेना है जहां नवाज शरीफ की जमात के लोग आसिफ अली जरदारी के सियासी वडेरे और ताकतवर कारोबारी खानदान अपनी लूटी हुई दौलत छुपाते रहे। न कोई सवाल, न जसारत, सिर्फ महल्लात, लांचे और खामोशी। क्योंकि बादशाह थे। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि 100 अरब डॉलर जो है वो 3 साल में जो है वो दुबई चला गया। ये अलहदा बात है कि उसमें मोहसिन नकवी खुद भी शामिल है और मोहसिन नकवी की एहलिया भी शामिल है। और मजे की बात है कि उसमें 13 जर्नैल भी शामिल हैं। ये 100 अरब डॉलर जो है वो दुबई ले गए। खुद वजीर दाखिला है, ठीक है जी। मगर हवा बदल गई। ईरान और इसराइल की कशीदगी बढ़ी, अमेरिका नजरें जमाए बैठा है और अचानक सहरा कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस होने लगा। चुनाचे ये लोग भी डूबते जहाज से भागते चूहों की तरह नई पनाहगाहें ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने रजब तैयब अर्दवान का मॉडल देखा, अवाम के सामने इजराइल मुखालिफ नारे, मगर पस पर्दा आजरबाईजान का तेल और गैस तुर्की की पाइपलाइनों के जरिए सीधा तेल अवीव यानी इजराइल पहुंचता रहा। कारोबार आखिर कारोबार है, कारोबार आखिर कारोबार है। यानी मैं एक बादशाह के बारे में पढ़ रहा था तो उनका कारोबार था पुराना रेवड़ बेचना, यानी जानवर बेचना। तो एक दिन उसका जो नाजिम था जो है चरवाहों का, जिसके जिम्मे थे जानवर बेचना, एक काफी समझदार बंदा था। तो वो काफी सारी अशरफियां लाया जानवर बेच के। तो उस हाकिम ने पूछा कि बड़े अच्छे जानवर जो है ना वो बिके हैं। तो वो कहता है कि जी जानवर सेहतमंद थे, जबरदस्त थे, खूबसूरत थे, ज्यादा पैसे मिले हैं। तो वो जो हाकिम था ना वो पूछता है कि किसको बेचे हैं। वो इंचार्ज कहता है कि जी सलीबियों को बेचे हैं, यानी क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को। अब मुखालफत भी चल रही होती है तो वो हाकिम बड़ा बरहम होता है कि तुमने क्यों बेचे हैं क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को क्यों बेचे हैं, वो हमारे मुखालिफ हैं, वही जानवर वो खा के वो हम पे हमला करेंगे। काफी लंबी तकरार हुई। ये मैं वाकई किताब में पढ़ रहा था। आप अंदाजा करें कि उन्होंने अशरफियां भी ज्यादा दी। हाकिम को फिर भी बुरा लगा कि क्यों बेचे उनको। अब एक वो लेवल है, एक ये लेवल है कि जी वो सारी गैस और सारी जो है ना तेल
और मुसलमानों ने रजब तैयब एर्दोगान को कुछ अरसे के लिए खलीफा समझना भी शुरू कर दिया था, तो वहां से गैस और तेल इजराइल को बिला रोक टोक जा रही है। ठीक है जी, कारोबार आखिर कारोबार है। अब अजरबैजान जहां पर एक खानदानी इक्तदार कायम है, यानी यहां पे अजरबैजान में जिस तरह इनका अपना है, उनके लिए बेहतरीन नई जन्नत दिखाई देता है। खानदानी हुकूमत, तेल की दौलत, हर तरफ से तल्लुकात, यानी दौलत छुपाने के लिए मुतबादिल माहौल। इनके पास इतनी दौलत है कि अब वो पार्क नहीं की जा सकती। यानी आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, वहां पे जो है ना वो ठीक है, लेकिन इनके अकाउंट्स जो है वो डॉलर्स में हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। जायदादों के कागजात हैं, उनकी रसीदें हैं जी। तो मिसाली माहौल, पुराने नवाज तो पहले ही, यानी बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ रास्ते आजमा चुके थे। अब बेटी मरियम नवाज बाकू में तस्वीरों के लिए मुस्कुराती नजर आती है, महंगे फोरम्स में शिरकत करती हुई, जबकि असल खेल नई महफूज पनाहगाहें तलाश करने का है। उधर पाकिस्तान में नौजवान अब पहले की तरह मरूब नहीं हो रहे। इस बार वो तस्वीरें देखकर गुस्से से बिफर उठे हैं। कोई सूट की कीमत निकालता है, कोई जेवरात की, कोई पर्स और जूतों की, फिर सोशल मीडिया पर लिखते हैं यहां लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा और गैस खरीदना मुश्किल हो गया है और इनकी शाहाना जिंदगी देखो। ये नेपो किड तहरीक चली थी नेपाल में। हुक्मरानों के बच्चे तस्वीरें पोस्ट करते थे, अपने कपड़े, अपने गाड़ियां, अपने फार्म हाउसेज। लोगों को गुस्सा आ गया, लोग बाहर आ गए, लेकिन हम यानी महमूद नियादी इतना ठंडा बगैरत है, इतना मुतमईन बगैरत है कि कोई परवाह नहीं है। उस औरत का मेकअप देखकर, उस औरत का पहनावा देखकर इनकलाब आ जाना चाहिए था कि ये कहां से आया, ये दूसरी चादर कहां से आई जिससे तुम्हारा कुर्ता बना। उसको वहां खड़े करके सवाल पूछना चाहिए कि तुमने काम सारी उम्र टके का नहीं किया काम कोई इसने, मुख्यमंत्री ने, या वो जो लौंडा फिर रहा है जरदारी का, उसने कभी कोई जिंदगी में काम किया है? इमरान खान पे बात करते हैं, इमरान खान तो 20 साल क्रिकेट के मैदानों में खज्जल होता रहा है। इमरान खान तो कमेंट्री करता रहा है। इमरान खान तो एडवाइजरी और जो है ना वो आईसीसी में रोल प्ले करता रहा है। इन्होंने कोई कख भन के डिंगा किया पूरी उम्र? कोई कारोबार किया? ये सारा माल कहां से आया जी? वो कीमतों का मुआवजा आटे, बिजली और पेट्रोल से करते हैं और इस पूरे तमाशे पर चीखते हैं। शायद पहली बार उन्हें तबकाती फर्क की एक झलक साफ दिखाई दे रही है, अगरचे मुकम्मल नक्शा अभी भी उनकी नजरों से ओझल है। ये जो कुछ दिखाया जा रहा है ना, ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, यकीन करें, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर इनके पास जो कुछ है। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते जो कुछ इनके पास है जी। अभी ओझल है, लेकिन अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकत सिर्फ अपना पता बदलती है, कभी दुबई, कभी बाकू, कभी जिनेवा और कल शायद कहीं और। दौलत मुंतकिल होती रहती है। इसका भाई लंदन में बैंकरप्ट होकर वापस आ गया, वो छोटा गेंडा कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूं। अब इधर फिर चूंकि हुकूमत आ गई है, फिर लूट मार करने के लिए पहुंच गए। असल में ये बड़े और छोटे के बेटों का भी मुकाबला होता है लूट मार का, कि वो जो शबू पालशी है उसके बेटे बिल्कुल लूट मार कर रहे हैं धड़ल्ले से, तो उनमें से भी एक पहुंच जाता है कि हमने भी करनी है। उधर बेटी कर रही है, सिद्धी लूट मार कर रही है, सिद्धी बिल्कुल। तो उनका भी मुकाबला रहता है, क्योंकि सुलेमान शहबाज कैपेसिटी पेमेंट में अरबों रुपया ले रहा है बिजली का। ये क्यों पीछे रहे? ये भी वही खून है गंदा लेकिन वही खून है, ठीक है जी। तो दौलत मुंतकिल होती रहती है, खानदानी
आमरीयतों से तल्लुकात बढ़ते रहते हैं, तल्लुकात भी बढ़ाते हैं, ज़ाहिर बज़ाहिर छुपे हुए, और मुनाफकत पहले की तरह कायम रहती है। चेहरे वही, खेल वही, सिर्फ सूट और शहर नए हैं। मुल्क मुल्क खून बहाता रहता है, जबकि इनके दस्तरखान हमेशा भरे रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां पे चिंची वाले से लेवी ली जा रही है। कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। इस तरह का जालमाना टैक्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में। कि जेट फ्यूल सस्ता है, जेट फ्यूल है 317 रुपए लीटर जेट फ्यूल, और चिंची वाले का पेट्रोल 412 या 413, क्योंकि जर्नैलों ने भी जेट फ्यूल इस्तेमाल करना है। जनरल साहब के पास 20 अरब का तैयार है, महल्लात में रहते हैं गमखार हमारे, इसके पास 11 अरब का जो है ना वो तैयार है। और बरामदाद के बारे में रिपोर्ट आई है जिसमें मुल्क चलते हैं कि 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है बरामदाद मुल्क की। अंदाजा करें जनरल साहब क्या कह रहे हैं स्टाफ एंड कमांड कॉलेज क्वेटा में, कोई पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकता, कोई भी। आज से 4 साल पहले बयान याद है, 100 अरब डॉलर आएगा, हर तरफ खुशहाली होगी, और अनकरीब पाकिस्तान जो है ना, याद है ना 3-4 साल पहले। अब फिर स्टाफ एंड कमांड जहां पे खिताब कर रहे थे उससे थोड़ा दूर जरा देखते कि 15-16 जिलों में पीने का पानी नहीं है। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोगों का हाल देखते कि तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हां, अगर कोई तरक्की से रोक सकता है तो वो हम है, और हम रोकेंगे तरक्की से। हमने 78 साल तरक्की नहीं करने दी, हम अब भी नहीं करने देंगे। तरक्की कर रहा था मुल्क, 22-23 में 6.1 पे हमने रोका, साइफर आया, हमने तरक्की रोक दी। नौकरियां पैदा हो रही थी, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, सेहत कार्ड मिल रहा था, लंगर खाने चल रहे थे, पनाहगाहें चल रही थी, बैनुल अक़वामी सतह पर इज्जत बढ़ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा में उसने डंके बजा दिए थे पाकिस्तान के। उसने अमेरिका में पाकिस्तान से बड़ा जलसा कर दिया था। उसने पाकिस्तान को सर उठाने का पहली दफा कहा था कि सर उठाओ, शाहीन बनो, नीचे क्यों रेंगते हो, उड़ो, 25 करोड़ हो तुम नौजवान हो, तुम किसी से कम हो। उसने कहा था, इन्होंने कहा क्यों, तरक्की क्यों करे? अगर तरक्की कर गए, अगर 2 जमातें पढ़ गए, तो फिर हमारी रियाया, हमारे मालशी, हमारे गुलाम कहां होंगे? हमारे गानों पे सर धुनने वाले, ये पुत्र हटाते नहीं विक दे, पेंटागन विक दिन, वाशिंगटन विक दिन, हर जाते विक दिन, टगे टगे ते विक दिन, सिर्फ हटाते दिन विक दे, क्योंकि सस्ते इतने हटाते कितों विकुन। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट नहीं डाल सकता। ये फेक न्यूज, ये जो मैंने आपको बरामदाद की बताई है, ये हुकूमत कह रही है, लेकिन ये फेक न्यूज है। 20 किलो का आटे का तोड़ा 2600 का मिल रहा है, ये फेक न्यूज है। 5300 अरब की करप्शन हो गई, ये फेक न्यूज है। 97,903 अरब का कर्जा चढ़ गया, फेक न्यूज है। अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए गए, फेक न्यूज है। मुख्यमंत्री ने 11 अरब का जहाज लिया, फेक न्यूज है। खुद आर्मी चीफ ने 20 अरब का जहाज लिया, फेक न्यूज है। वो आर्मी चीफ भी 20 अरब के जहाज लेते हैं, पढ़े ना आर्मी चीफों को, जिनको दुनिया आर्मी चीफ कहती थी, दुनिया, कि हां ये चीफ हैं, हां ये जर्नैल हैं, उनके बारे में पढ़े ना। सारी जिंदगी घोड़े की काठी पे गुजार दी। घोड़े पे सवारी आसान नहीं है, सारी जिंदगी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क गुजार दी जिंदगी। रात को मुसल्लों पे और सुबह को घोड़ों की काठियों पे।
और उनके घोड़ों के सुमों से चिंगारियां निकलती थी। चिंगारियां वो लोग थे। ये फेक न्यूज है। वो कहते हैं कि ये सारी फेक न्यूज है। मेरे साथ है, मैं दिखाता हूं। बलूचिस्तान के 16 जिलों में पानी नहीं है, फेक न्यूज है। ये दौरा कर रही है और टीवी पे क्लिप्स चल रहे हैं कि 4.5 करोड़ की चीजें बनी, फेक न्यूज है। वो कहते हैं फेक न्यूज है। बहरहाल अब जावेद हाशमी सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। इंतहाई जो है ना वो सीनियर, आप जानते हैं कि सियासतदान है, गर्म सर देखें, जेल देखी है। साइफर पब्लिक होने के बाद साबित हुआ कि एक साजिश के तहत इमरान खान को हटाकर अवामी राय और वोट की इज्जत को पामाल किया गया। ये कौन कह रहे हैं? जावेद हाशमी जी। आसिम मुनीर एंड कंपनी को अमेरिका की नौकरी के लिए लाया गया। ये लाइन ही काफी है। जावेद हाशमी कह रहे हैं नौकरी के लिए लाया गया, जो वो आज तक वफादारी से सर अंजाम दे रहे हैं। वफादारी से। अमेरिका एक शिकस्त खुर्दा रियासत है। वक्त दूर नहीं जब तमाम साजिशी अनासिर और अमेरिका के गुलामों को अपने जराइम की सजा मिलेगी। जावेद हाशमी। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और तमाम कैदियों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो नाहक कैद काट रहे हैं। आपका मौकिफ आज कौम के सामने सच साबित हो चुका है। सच साबित। ये जो है ना वो कह रहे हैं जावेद हाशमी, पीटीआई में नहीं है। पहले किसी दौर में पीटीआई में थे, लेकिन अब पीटीआई में नहीं है। वो कह रहे नौकरी के लिए लाया गया है। और मजे की बात है, किसकी नौकरी? अमेरिका की नौकरी। और बड़े धड़ल्ले से जारी है, बड़े तुम तराक से जारी है। यानी साइफर ने क्या बात साबित की? साइफर ने यह बात साबित की कि अमेरिका जो कहेगा, अमेरिका बहादुर, उस पर अमल होगा। और उस पर अमल हुआ। अभी वही है। अभी जो आप देख ले, माय फेवरेट फील्ड मार्शल और माय फेवरेट जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हारून रशीद साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा सबसे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो करप्ट आर्मी चीफ था ना, करप्ट, वो जनरल बाजवा था। उसको पैसे की बहुत ज्यादा हवस थी। अब खाए वो पैसे जो इकट्ठे किए। ये हारून रशीद साहब का कहना है। हारून रशीद साहब यहां तक कहते हैं कि नवाज शरीफ को जेल से निकलवा कर लंदन भेजने के भी पैसे लिए बाजवा ने। अब कितने पैसे लिए होंगे? उधर नवाज शरीफ, उधर बाजवा। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई दयानतदार आर्मी चीफ गुजरा है तो वो अब्दुल वहीद काकड़ थे। ये हारून रशीद का कहना है। अब्दुल वहीद काकड़ का एक वाकया मुझे याद है। वो ये कि अब्दुल वहीद काकड़ को एक्सटेंशन की पेशकश हुई। एक्सटेंशन की, गौर से सुनना है। एक दावत पे, अभी आर्मी चीफ थे, एक दावत पे उनको मजीद निजामी मिल गए, नवाए वक्त के मालिक, फौत हो गए कब के। तो जनरल साहब ने मजीद निजामी को कहा कि निजामी साहब, हुकूमत मुझे एक्सटेंशन ऑफर कर रही है। मैंने बीवी से मशवरा किया है, जनरल साहब कह रहे हैं, मैंने बीवी से मशवरा किया है तो मेरी बीवी कहती है कि आप एक्सटेंशन ना लें, आप इज्जत से घर जाएं। आपका क्या ख्याल है? तो निजामी साहब ने जनरल को कहा, आर्मी चीफ को कहा कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा अक्लमंद है। फिर जनरल साहब ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया निजामी से और एक्सटेंशन नहीं ली। कभी आपने सुना कि यहां पे अब्दुल वहीद काकड़ जो है वो आर्मी चीफ होता था, कि किस तरह उसने 3 साल पूरे किए। उसके दौर में भी ये लड़े, पीपल्स पार्टी और नून लीग और गुलाम इसा खान, उस वक्त भी रोला पड़ा।
لیکن اس نے حالات سے فائدہ. یہ میں آپ کو ہارون رشید صاحب کا تجزیہ بتا رہا ہوں کہ سب سے کرپٹ کون تھا اور سب سے دیانتدار کون تھا. یہ ہارون رشید صاحب کا تجزیہ ہے کہ سب سے کرپٹ باجوہ تھا اور سب سے دیانتدار جو ہے وہ عبدالوحید کاکڑ تھے. میرا خیال ہے ابھی بھی زندہ ہے. یہ ہارون رشید کا میں آپ کو جو ہے وہ قصہ سنا رہا تھا. اس کے بعد اب نائیوں نے پہلے وہ آپ نے 18 سال سنا کہ 18 سال مدت ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کے لیے. پھر کسی نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے بندے کو گنجا ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ایک ٹانگ ہونی چاہیے. کسی نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے پی ایچ ڈی ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے فوج کی وردی ہونا چاہیے. کوئی ووٹ آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے، جو ریٹرن جو ہے نا فائل کو جو ریٹرن جمع کرا رہا ہے، ریٹرن فائل، وہ ووٹ دے. اندازہ کریں پتہ کتنی تعداد ہے پاکستان میں ان کی؟ میرے خیال ہے 22 لاکھ ہے ٹوٹل. 22 لاکھ کہ ووٹ دیں. تو لے بھی تو پیو دے رہا ہے وہ ٹیکس نہیں. پیٹرول پہ ہر چیز پہ ٹیکس لوگ نہیں دے رہا. ہوٹل پہ جائیں اپنا کھانا کھائیں اپنا بل دیں، اس میں بھی 18% سیلز ٹیکس ہے. نہیں دے رہے لوگ ٹیکس. اب بہرحال نائب جو ہے نا یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں جرنیلوں کے کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے ووٹ دینے سے پہلے حج لازمی قرار دیں. بڑا مہنگا ہے آج کل کہ جو حج کر کے آئے گا وہ ووٹ ڈالے گا. جو مرضی یہ کر لیں. لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، کعبے کی چھت پہ آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ بولتے ہیں. آپ نے 78 سال میں یہی کیا ہے. کدھر گئی یوں والی ترقی؟ کدھر گیا یا کدھر گیا ضیاء کا اسلام؟ کدھر گیا مشرف کا میری جسم میری مرضی؟ کتنے ڈالر لیے امریکہ سے؟ ملک کی حالت یہ ہے. پورے خطے میں پیٹرول جو ہے سب سے مہنگا ہے. جو مرضی آپ کر لیں. آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے، آپ نے ملک کو خراب کرنا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے بندے لانے ہیں. پورا نظام ایک پنجاب کی رانی کے گرد گھوم رہا ہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہے. لوگ روٹی کو چوچی بولتے ہیں یا لوگ روٹی منہ میں لے جانے کے بجائے کانوں میں لے کے جاتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا اس کو کون لایا، اس کو جتوایا کس نے، کس پلان کے تحت یہ خاندان آیا، کیا سودے بازی ہوئی. ہر کوئی جانتا ہے. اب کہہ کوئی نہیں سکتا، جانتا ہر کوئی ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ ان 4 سالوں کی یا یہ 5 سال رہ جائیں، 6 سال رہ جائیں، 7 سال رہ جائیں، جب کہانیاں کھلیں گی تو لوگ یحییٰ کو زیادہ نیک تصور کریں گے کہ یحییٰ ٹھیک تھا، یحییٰ زیادہ نیک آدمی تھا. کہانیاں کھلیں گی نہیں. سائفر نہیں کھل گیا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں آ گئی. جنرل یحییٰ جنرل نیازی روزانہ میں آپ کو قصے سناتا ہوں، نہیں کھل جاتی ہیں. فرعون کے قصے نہیں کھل گئے، یزید کے قصے نہیں کھل گئے. ہر محرم میں کیا ہوتا ہے یزید کے ساتھ؟ کھل گئے قصے، کھل جاتے ہیں. یہ بھی کھل جائیں گے، یہ بھی کھل جائیں گے. راول ڈیم پہ کون سا مقام تھا، کتنی گاڑیاں تبدیل کی جاتی تھی، کون سی گاڑی پہ کون جاتا تھا، جہاز کہاں پہ پارک ہوتا تھا. جہاز کی جو لوکیشن بتاتا ہے جو سسٹم، وہ سسٹم ہی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ صحافیوں کو پتہ چل جاتا تھا اب جہاز یہاں پہ، اب یہاں پہ، اب یہاں پہ. وہ سسٹم ہی بند کر دیا گیا ہے. بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، بند کر دیا گیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے. وہاں پہ گئی ہے جہاں باکو میں، جہاں وہاں صحافیوں کو کہا گیا ہے کہ اس اینگل سے تصویریں لینی ہیں ایئرپورٹ پہ کہ پیچھے جہاز نظر نہ آئے. پھر لوگ باتیں کریں گے پیچھے جہاز نظر نہ آئے. وہ خریدے اسی لیے گیا ہے. بیڈ روم والے جہازوں کی کیا ضرورت تھی؟ بیڈ روم والے جہازوں کی
लग्जरी जहाजों की क्या जरूरत थी? पूरी दुनिया में 136 या 135 हैं, इंडिया के किसी वजीर आला के पास नहीं है। कितनी बड़ी इकॉनमी है, किसी के पास नहीं है। वो पिछले दिनों आपको किस्सा सुनाया था कि एक वजीर आला ने खरीद लिया कनाडा के, वो थू हुई कि उसे बेचना पड़ा। लेकिन वो कोई इज्जत होती है, कोई गैरत होती है, कोई खानदानी खून होता है, कोई ईगो होती है कि लोग हमें गालियां दे रहा है, लोग हमें बददुआएं दे रहा है, लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहा है। इन 4 सालों की कहानी नहीं खुलेगी? खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। और सारा कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना जुल्म किया लोगों के साथ, इन्होंने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान की जड़ें काटी, इन्होंने पाकिस्तान को मोहताज रखा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, हम लोगों को 3 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई, हमारे पेट भर गए, तो हम सोचेंगे। जब हम सोचेंगे तो हम सवाल करेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उधर देखे मदनी आफ्ताब को, कौन था साथ जब ऐलान किया? कौन था साथ जब ऐलान किया नबूवत का? कौन साथ था? इंतहाई बुजुर्ग जनाब अबू तालिब, जिनका एहसान है पूरी उम्मत मुसलमा पे कि हमारे सोने आका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह 7 पर्दों में अबू तालिब ने छुपा कर रखा, संभाल कर रखा, कितने प्यार से रखा, और फिर हमें दे दिया कि इनको सीधा रास्ता दिखाओ, इन पे रहम करो, तुम रहमतुल आलमीन हो। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवाय अदल के, सिवाय इंसाफ के, सिवाय इल्म के, सिवाय सदाकत के, सिवाय अमानत के, कुछ भी नहीं था। वो बन जाए, मुल्क उठ जाएगा। लेकिन क्यों बने? क्यों? रियाया। ये रियाया कहां से मिलेगी? ये गुलाम पले पिलाए कहां से मिलेंगे? अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।